and resolve as many queries as possible. I would like to acknowledge the presence of our guest of honor of today, CA Sanjay Kumar Agarwal, our veterinary team member, C. Ashwani Jindal sir from Jalandhar, and our new team member, CA Manpreet Taneja ji, who would also be our co-moderator for today. Manpreet is a young and dynamic practicing chartered accountant in Delhi. I would like to invite him to please introduce our guest of honor for today. Manpreet ji, over to you. Yeah, thank you so much, Neha, for giving me an opportunity to introduce CS Sanjay Kumar Agarwal, sir, who is an elected Central Council member. So you all will be glad to know that he has been into profession, serving the profession for more than 35 years. Sir has a vast experience of direct tax, and he has been a well-known name in the profession for last more than 2 decades. You will be glad to know that Sir has been elected fourth time as Central Council member just because of his eagerness, his dedication towards the profession, his out-of-box approach, and his humbleness for the professionals. He is well-known name, and and he is a founder of Voice of CA, the organizer of this event. He has been here for us, for the professionals. And if we just counting the things and his achievements, we will end up by evening. So there are a lot of his achievements. So without taking much of time, I welcome sir you to please give us a light or give us a few words from your mouth, sir. We welcome you, sir. Please. Thank you, CA Manpreet. First of all, a very good evening to everyone. And after being elected for the first time, I'm coming in the program of Voice of CA. As you know, there are a lot of other commitments which I have to do it. But I know it that the team now led by CA Neha, my daughter, is working tirelessly on the various things. And as you know, the Karta of our HUF, Ashwani Jindal ji, has done a lot of program. We have not stopped even for a single day. And on Australian accounting and others, he is continuously doing the work. This niche topic today, which we have sought on the financial instrument vis-a-vis Ind AS, I would like to tell you that the young and dynamic our faculty Karthik Jindal is you can say have a deep knowledge at such a young age, and even sometime I think that how he's getting this much knowledge in this, it's something remarkable. There is a lot of unknown factors around this particular topic, and understanding is required in the financial instruments. However, it's noteworthy that in this niche topic, there is a lot of scope of the practice. Let me tell you, friends, as on one side, the members may be thinking that faceless assessments, then some of the audits which are not there, though in my agenda, I have already promised that once I enter into the council, and let me tell you, friends, the council will start on 12th of February. Some of the agendas which were there, we have been able to do it even prior to the beginning of the council. And because of our commitment to a member, that we will try to provide new area of practicing. We'll be providing the, you can say, new opportunities also, and we'll be highlighting some of the new. And in that series, when we have talked about the think tank, 2 episodes we have done, and then thereafter the election code conduct has started. Now, very soon after 12th of February, we will try to give something more on the think tank also. Now, today, the faculty is going to cover the Ind AS related financial instruments.
Ind AS 32, 109, and 107. And let me assure you that I have seen working Karthik. I have seen also the dedication of him. I have also seen some of the professional work wherein I have been, you can say, briefed about his skills, and very fast adaptive and enthusiastic our faculty for Tupuri. In this program specifically, when the thought came, and I requested Neha to do something on Ind AS, and in our team, none other than Karthik Jindal could be one of the faculty. We could have made this program, you can say, a bigger forum. We could have invited some of the our past presidents or some of the our other faculties, but since Karthik is being given a very tough task of not only addressing for all 3 days, but handling, taking all professional queries. And if we are not in a position to take on the first day, the balance query has to be taken before dealing with the topic on the second day. And we should not leave even one query unless until we are required to devote some time, have to have some study, have to have, because Ind AS, everybody knows these are not yet matured that enough. And Institute is also working very hard on various implementation guides, etc. So this is what I would like to say in the initial remarks. And so far as if any member is having any other query, I'm available still 24/7. And let me tell you, friends, within 2 days, approximately 6,000 WhatsApp have been replied by me. Approximately 1,000 and more call have been answered by me, and I'm available. And as on today also, there is no pendency of any call. I'm available to all member at any time. You can call me. And as it was my tagline that if you are not in a position to sleep and you think by talking to me you can sleep, don't think I'm sleeping. I still maintain, except for when I'm in the flight or when I'm in some meeting. It is my phone is always available, and you can call me at any time. If I am not picking up, it is but for sure that the same day you will get the call back. And as already Ashwini ji has said that our CA Association and VOCA is going to organize the very first program with Dr. Girish Ahuja and some more faculties. You are requested to kindly register and also tell your friends, as we have a very tough target being given by Dr. Girish Ahuja of having more than 50,000 participants in that program. And I'm sure that is going to be the best program. As you know, the Dr. Girish Ahuja's analysis to the budget is absolutely no matching. And we know how much it was difficult for us to see this, that our program, along with the society, the tax education tales society, which is you can say run, owned and managed by Arun Ahuja ji, Dr. Ravi Gupta and Guruji being the patron. And that program will be starting somewhere around 9:30. Please join at least 10 minutes before 9:30 so that any technical glitches that can be handled. In that program, first of all, before the actual program of Dr. Girish Ahuja, our faculty Aman Chugh is going to give something on the impact of the capital market of the budget, and then on international tax, our one of the close associate chairman NRC in office,
will give something about the impact of international tax on the budget. And this time, as compared to last year, we have not stretched it for till evening. The program will be over after Dr. Girish Ahuja ji and other dignitaries speak on that. So what I promise you that please join, and there is no limitation. Student can also join this program. There is a link which is provided on the screen and will be also given. And any part of the country, the members can join. And please popularize this program. And it may be possible due to certain reason, I may not be able to attend that program for the whole day. However, the team, as we are doing every time, the budget analysis, a 360-degree analysis, will be published by Voice of CA around midnight on 1st of February, because the team is going to analyze. And you can also join the team if you have interest in drafting. And as CA Neha said that Manpreet is also joining our streams, so you can invite him also. And it will be a semi-hybrid this time. Some of the, because in Delhi there is a curfew, and after 8 p.m. Will not be able to sit in the office. So this time we have shifted our headquarters at two places, one at the Mr. C. Siddharth Jain's office and the other at my residence, which will be controlled by CA Neha. And the Ashwani Jindal ji will be coming to Delhi, especially on second program, so that Dr. Girish Ahuja ji is available, and he will be controlling the control room from Dr. Girish Ahuja ji's office. So this is something small I would like to say, in not saying again and again, but still I'm available 24/7 and try to see this, that my taglines I maintain, I pray from the God. Thank you very much for all the participants for registering in large number to support our young and dynamic faculties. And let me assure you, in the coming this webinar, we have already subscribed through our Masterbrain. Those who are Masterbrain is providing us technical assistance the entire year webinar. The physical programs will be there, but the webinars will continue, and you are requested to give all your suggestions on which topic we should take, and faculties also, especially the younger generation, if you find, we can also take all those faculties. Thank you very much for giving me this opportunity as a guest of honor in our own organization. I have not thought it that I could be a guest of honor here, but thank you very much. And I would request Ashwani ji to say a few words, then technical program can continue. Ashwani ji. Thank you, Sanjay ji. This is the first program by the VOCA where you have come after elected. First of all, congratulations to Sanjay ji, and thanks to all the members who have voted for Sanjay Agarwal ji. And this time also Sanjay ji could serve our profession with same zeal. And I also welcome Karthik ji. जैसे संजय जी ने सारा बता ही दिया, कार्तिक जी यंग डायनामिक लीडर हैं, हमारे फैकल्टी हैं. देन नेहा जो अब हमारा वॉइस ऑफ सीए का पूरा फोरम देख रही है. एंड हमने जैसे आपको कमिट किया था कि इवन आफ्टर इलेक्शन कि जो हमने वॉइस ऑफ सीए का प्रोग्राम जो चलाया है ड्यूरिंग कोविड पीरियड लास्ट ईयर, तो वो हमने कोई इलेक्शन के लिए ही नहीं चलाया. इलेक्शन इज पार्ट ओनली, वो एक हमारी लाइन है सिंपल. तो हमने वो चलाया है मेंबर को नॉलेज देने के लिए, एंड दैट वी विल कंटिन्यू इवन आफ्टर इलेक्शन, और सेम जील से कंटिन्यू रखेंगे. जैसे हमने अनाउंस भी किया था कि फर्स्ट प्रोग्राम हम यूनियन बजट का भी सीए एसोसिएशन और वोका की तरफ से करेंगे गिरीश ओझा जी के साथ. वो भी हम पहले करने जा रहे हैं. आगे भी और भी बहुत प्रोग्राम है जो हम सर्विस के लिए मेंबर्स के लिए करने जा रहे हैं. वो आपको टाइम टू टाइम नेहा की तरफ से, मेरी तरफ से आपको अनाउंसमेंट्स आती रहेंगी.
तो आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सभी मेंबर्स इसी चाह से आए हैं कि हमने इंडेस सीखना है और हमारा 6 बजे एक और प्रोग्राम है। ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं सबका वेलकम करता हूं वॉइस ऑफ सीए की तरफ से कि आप इन बिग नंबर हमारे साथ जुड़े और आगे भी जुड़े रहेंगे। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में विदाउट सीपीआर हमारे प्रोग्राम में इतने अच्छे नंबर में बंदे आ रहे हैं तो वो सिर्फ वोका की क्रेडिबिलिटी के कारण आ रहे हैं कि वो डिलीवर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you, Sanjay sir. I would request Manpreet to quickly introduce our speaker for today so that we can start with the technical session immediately. Thank you, Manpreet. Yeah, thank you so यूट्यूब much. नहीं शुरू हुई है, यूट्यूब नहीं शुरू हुई, वैसे रिकॉर्डिंग तो मैंने क्लाउड पे कर दी है लेकिन हाँ यूट्यूब जी। नहीं शुरू हुई। हाँ जी, मैं Yeah. चेक करती हूँ, मैं चेक। Yeah, thank you so much, Neha. Let me introduce CA Karthik Jindal, our today's faculty for the subject. So he is a chartered accountant by profession and a BBA graduate. He has secured All India rank 9 in CA examination. He is a visiting faculty for the ICAI and he is a committee member for the Ind-AS committee of NIRC of ICAI for the year 2021-2022. He has also secured highest marks in CA final financial reporting and he has vast experience of Ind-AS implementation and Ind-AS conversion. So now I would request CA Karthik Jindal to come and deliberate us. Welcome, Karthik, sir. Thank you, Manpreet sir, for your kind आपने जो किया है मेरा इंट्रोडक्शन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द वॉइस ऑफ सीए जो ये कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन्होंने मुझे चांस दिया। एंड आई आल्सो थैंक यू संजय सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड अश्विनी सर एंड स्पेसिफिकली सीए नेहा अग्रवाल। थैंक यू ऑल। सो आज का नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आर द स्क्रीन विजिबल? हाँ जी विजिबल है। हाँ जी, ओके हाँ जी। लेकिन अभी ब्लैंक है। हाँ सर ब्लैंक रहेगा वो। सो ग्रेट। नाउ अवर टॉपिक इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। This is most important topic in Indian accounting standards. So I requested all the जो भी join किया members ने please reply in large numbers. Please reply. सबसे पहले a very warm welcome to all. So please reply in a large number. Whichever question I will ask, you need to just reply. Okay? So now start. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही क्यों? व्हाई वी आर स्टडीइंग द चैप्टर? Karthik, there is a request that Okay, we may use English more. yeah, As yes, some sir, of the participants have come from South. yeah, sir, sure. So now, why financial instrument? I am sharing you an example. Sharing you my screen. So this is a balance sheet of a company name. See, please see the balance sheet. Please see the balance sheet as at 31st March 2015. This balance sheet is made according to accounting standard AS, not Ind-AS. This is AS compliant balance sheet. Please see the balance sheet. Equity and liabilities, shareholder fund, non-current liabilities, current liabilities, asset, non-current asset, fixed asset, current asset, total. So this is the accounting standard balance sheet, AS balance sheet of a company for the year 2015. Now we are seeing the same company balance sheet, but as per Ind-AS, but as per Indian accounting standard for the year 31st March 2019. Please see the balance sheet. This is annual report of a company, and as a chartered as a CA, as a consultant of the company, we need to understand the aspect in a very good way. Non-current asset, property, plant and equipment, current asset. Please see the balance sheet of Ind-AS, equities and liabilities, equity, liability, current liability, total. So you need to say, you need to show me the
difference between AS balance sheet and Ind AS balance sheet? Please reply in chat box. What is the difference between AS and Ind AS balance sheet as you seen so far? This is very important. Expect, please reply. This is Ind AS balance sheet and this is AS balance sheet of a company. Karthik, just one thing. I Okay. think आपके यहाँ bandwidth का issue है. So, Okay. हाँ, because your voice is cracking. Yes. Okay. Also, let me just. What you can do, you can off your video. Yeah. Okay, sir. Okay. Now it's perfect. Now we have two balance sheet. One is AS balance sheet and second is Ind AS balance sheet. This is AS and this is Ind AS. The very first difference is that the non-current asset portion is upper hand, is shown first. And while in AS balance sheet, we have say equities and liabilities, then total asset. The second part is asset. But in Ind AS, we have shown non-current asset on the top and the starting of the balance sheet. Now, second main changes, major change is the property, plant, equipment, capital, intangible financial asset. This is financial asset. But in AS balance sheet, there is no financial asset, only fixed, tangible, intangible, non-current investment, long-term loan. But in Ind AS, we have a separate financial asset. Now, same cheese in this financial asset. When we move over to equity part, we will see the changes is that equity portion is two part, equity share capital and other equity. While in accounting standard, we all know that we have a shareholder fund, share capital and reserve and surplus. There is a big change. Now also in liability part, we have a main change is financial liabilities. While in accounting standard, we not have this thing. So, sir, why we are studying this? Because this is financial instrument. This is financial instrument. If we don't know that, what is the meaning of financial asset, financial liability or equity, we cannot able to compute the financial statement. We cannot prepare our financial statement. That's why we are studying the chapter financial instrument. It's comprising of three Ind AS. Ind AS 32, Ind AS 109 and Ind AS 107. We have three Ind AS for this session. Let me tell you guys, this all the three standards are very important and all the three standards are interlinking with each other. And we all thought that, and we all thought that financial instrument is very difficult. No, it's very simple. It's very easy. Main thing is it's a logical concept, which is not in the accounting standard. In Ind AS, we have all the three. In Ind AS, we have, why Ind AS comes, sir? Can you give me one reason why Indian accounting standards are being introduced in India? Sir, to maintain the risk, to maintain the trust of the investors. This is the main reason to introducing the Indian accounting standard. And in Ind AS, all things are in fair value. We measure all the things in fair value. So three Ind AS. Sir, क्या काम है इन, sir, क्या काम है इन Ind AS का? Ind AS 32, Ind AS 109, Ind AS 107. We have three standards. We have three standards. Now, sir, Ind AS 32 क्या करेगा? Sir, main job क्या है Ind AS 32 की? Ind AS 32 main thing हमें ये explain करना that what is the meaning of financial asset. Ind AS 32 has only one task, that it define that
What is the meaning of financial asset? What is the meaning of financial liability? What is the meaning of equity? And majorly, what are financial instrument? What are financial instrument? All 3 or 4 things are there in Ind AS 32. It's only shows, it only says only about definition part. Only definition part. आप एक खुद एग्जांपल लीजिए, आपको नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ गया, यू आर अ कंसल्टेंट ऑफ अ कंपनी, यू आर अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, आप चेक कैसे करोगे कि सर दिस इज फाइनेंशियल एसेट पार्ट, दिस इज लायबिलिटी पार्ट, दिस इज इक्विटी पार्ट? क्यों सर? हमें सर आइडिया ही नहीं है इंडियस के बारे में, कैसे चेक करेंगे? तो इंडियस 32 क्या बताता है? इंडियस 32 ओनली सेज अबाउट डेफिनेशन, दैट व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ financial asset, what is the meaning of financial liability, and what is the meaning of equity. This is in Ind AS 32. Clear or not? Please reply. Just 2 or 3 replies and I will continue. Clear ना? बहुत अच्छा होने वाला है. You will start interesting taking this session. Guarantee you that. This is the main purpose of Ind AS 32. Great. You are giving reply. That's very good. Now, sir, what is the meaning of Ind AS 109? Ind AS 109 is to dare to. Ind AS 109 का मेन पर्पस क्या है? The main purpose of Ind AS 109 is to prescribe the accounting treatment. Is to prescribe the accounting treatment. Sir, कैसे? Sir, please show me the example. See, this is Ind AS balance sheet. Hopefully, you will see the Ind AS balance sheet. सर, फाइनेंशियल असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आया, ट्रेड रिसीवेबल आया, लोन आया, ये बताया किसने? दिस इज ऑल टॉट बाय Ind AS 32. बट सर द वैल्यूज 66,472, 797, 38,500, दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट. दिस इज कंप्यूटेड एज पर Ind AS 109. So the main purpose of Ind AS 109 is to the main purpose of Ind AS 109 is to prescribe the accounting treatment. This is the main purpose. How to measure, how to recognize, how to subsequent measure, how to de-recognize, all things are there in Ind AS 109. Okay or not? Clear or not? In future कभी दिक्कत आई, कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. Hopefully it is clear to all of the things. Now what is the meaning of Ind AS 32? 109. Now sir, Ind AS 107 क्या काम है इसका? सर definitions हो गई, measurement, accounting treatment, all the things are there. Sir, what is the purpose of Ind AS 107? Ind AS 107 is meant for the disclosures requirement. And let me be very honest with you, Ind AS disclosures is the most heavy part for any company to prepare. If you see annual reports compromising 300 pages, you will be shocked to know that about more than 200 plus pages is only for the disclosures part. Sir, how can you say that, sir? Let me show you a very good example of Ind AS 107. This is a balance sheet of same company. I'm only showing you the trailer part of the disclosures. Sir, this is Ind AS 107 disclosures. It's only an examples. The list is executive. Fair value of financial asset and liabilities. Sir, you know, when we're talking about financial asset, financial liability and equity, that means we are talking about the financial instrument. Yes, I will share you all the things. Don't worry at all. So now, hopefully you can understand all the things. Okay? Picture is okay? So what is the meaning of 32, 109, 107? Yes, you know. Please reply. I also need your attention. Please reply so that I can move forward.
So देखो, now the thing is that sir, now the thing is that अगर कोई चीज, if anything is not covered under India's 32, for example, if any transaction, if any event is not covered by India's 32, then India's 109 will not be applicable automatically. Chapter over. If anything is not going into the definition of financial asset, financial liability or equity, that means financial instrument chapter is not applicable to that particular part. Great, chalo. Now we sharing the notes. Now financial instrument presentation. This is the name of India's 32. Financial instrument presentation. Sir, सबसे पहले factor है sir, what is the meaning of financial instrument? Sir, the first thing which will come into mind that what is the meaning of financial instrument? This is the first thing which will be in the mind. See sir, financial instrument is any contract. Financial instrument is any contract that give rise to a financial asset for one entity and a financial liability or equity of another entity. See sir, financial instrument is a contract. Contract may be implied or may be written or may be legal or may be not legal, doesn't matter. The main thing is there is a contract between, because contract is not going to happen between the same entity. There must be a two entity part, for example A and B. अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तैयार करवाना है, इफ वी वांटेड टू से दैट दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दैट मींस सर वन एंटिटी विल होल्ड फाइनेंशियल एसेट, another entity will hold either financial liability or equity part, other entity will hold financial liability part or equity part. सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक एंटिटी का फाइनेंशियल असेट भी बन जाए प्लस इक्विटी बन जाए और दूसरी की सिर्फ लायबिलिटी बन जाए? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हो, दिस इज इंडियाज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. सी बैलेंस शीट हमारे पास होती है असेट एंड equities and liability are the separate, so total match होता है. So one party, okay, let me stop my video. Now perfect. So one party is only having a financial asset. For one entity, the contract rise financial asset for one entity, and for second entity there might be a financial liability or equity depending upon the circumstances. So अगर ये contract हो जाता है तो this is financial instrument. समझ आया? Have you understand sir that what is the meaning of financial instrument? Because this is very important. This is very, very important to know the meaning of financial instrument. Any doubts? Yeah, I will give you example. Do not worry. I will definitely give you many examples. But after analyzing the many part. Okay, great. Now, sir, we know one thing, sir. Sir, for every standard, for everything, there must be a scope of the standard. There must be a scope of the standard. सर अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है अगर कोई भी होता है ट्रांजैक्शन जो आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी एक कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट बन गया, किसी दूसरी कंपनी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया या वो इक्विटी बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर तो इंडिया 32 एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ कारण के अंदर देयर इज एवरी एक्सेप्शन. सो एक्सेप्ट that means India's 32 is not applicable, means all the financial instrument chapter is not applicable. First, इसको छोड़ो अभी. First, employer rights and obligation under India's 19. एक specific India's है, India's 19 employee वाला. अगर कोई ऐसी जो ट्रांजैक्शन वहां चली गई है तो उसके लिए इंडियस 19 बैठा है.
हम इंडियस 32 को कंप्लेन नहीं करेंगे, इंडियस 32 से वो आउट हो जाएगा। वन इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंडियस 104। अगर कोई भी ऐसी जो ट्रांजेक्शन है वो इंडियस 104 में आ जाती है, दैट मींस उसके लिए इंडियस 104 एप्लीकेबल होगा। सर व्हाई? क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली इंडियस पहले से बना हुआ है। और आपकी नॉलेज के लिए वन थिंग आई नीड टू अपडेट यू दैट नाउ इंडियस 104 विल बी रिमूव्ड। After 2 years, India's 104 will be removed. A new India's 117 is coming on the way. New India's 117 is coming on the way, and which is most probably applicable from 1st April 2024 for the insurance companies. It is not for CA final. Share-based payment as per India's 102. Now, sir, very most important thing, exception part, most important. सर आपको पता होगा इफ अगर हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है किसी सब्सिडरी के अंदर, अगर हमारी कंपनी, इफ अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन सब्सिडरी, इन एसोसिएट और अ जॉइंट वेंचर, इफ अ कंपनी इज हैविंग अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इट्स सब्सिडरी और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, आपको पता है 2 टाइप की स्टेटमेंट होती हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए कितने कौन कौन से टाइप्स की होती हैं? वी हैव 2 टाइप्स, बताइए कौन कौन से टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर वन टाइप इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर वन टाइप इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकेली कंपनी। सेकंड इज कंसोलिडेटेड, मतलब कंसोल बनता है सर किसका? टोटल ग्रुप का, पूरे ग्रुप का। वी हैव अ कंसोलिडेटेड financial statement. And if you know one thing, sir, if we have an investment in subsidiary, associate or in joint venture, IndAS 27 is applicable. You see sir, all the IndAS is interlinked to each other. आपको पता है, देखो सर, हम पढ़ रहे हैं IndAS 32 लिंक हो गया IndAS 27, हम पढ़ रहे हैं 109 तो कोई दूसरा IndAS है वो लिंक हो जाएगा, 107 पढ़ोगे कोई दूसरा IndAS आपस में लिंक हो जाएगा। सो वी हैव अ इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स। अगर हम किसी कंपनी की क्या बना रहे हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, और उस कंपनी का कहीं इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना IndAS 27 तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने किसी जब आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी होगी, जब आपकी कोई एसोसिएट कंपनी होगी, जब आपका कोई ज्वाइंट वेंचर होगा, तभी IndAS 27 एप्लीकेबल होगा। और आपको पता है सर, IndAS 27 हमें ऑप्शन देता है, IndAS 27 हमें ऑप्शन देता है कि या तो आपने जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो सामने वाली कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी मर्जी है सर, या तो आप उसको कॉस्ट पर दिखा लो या आप उसको फेयर वैल्यू पर शो कर सकते हो। दिस इज एन ऑप्शन बाय 27। और एक चीज ध्यान रखना, अगर एंटिटी ने चूज किया कॉस्ट मॉडल, if an entity chosen cost model, then IndAS of financial instrument is not applicable। ध्यान रखना इस बात को, अगर एंटिटी ने कॉस्ट मॉडल चूज किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IndAS is not applicable। if an entity choose fair value model, then financial instrument IndAS is applicable। so this is the history। समझ आया आपको? सी विनय कुमार सर, most cases I accepted that cost model is there, but sir we have to taken every view that what is cost model, what is fair value, what is deciding factor। sir a company can decide, sir company needs to decide that उसको कैसे मेजर करना है।
फॉर एग्जाम्पल सर कैसे आपने किया इन्वेस्टमेंट, किसके अंदर किया इन्वेस्टमेंट? फॉर एग्जाम्पल आपने किया रिलायंस के अंदर, आपके पास बहुत पैसा था सर, आपने परचेस कर लिया, आपने परचेस कर लिया रिलायंस का शेयर और आपने परचेस कर लिए 51% ऑफ रिलायंस शेयर। ओहो सर, मतलब आप सब्सिडरी बन गए, आपके पास कंट्रोल आ गया। अब आता है इंडिया 27 का मॉडल। इंडिया 27 क्योंकि आप क्या बना रहे हो, सेपरेट बना रहे हो, तो अब इंडिया 27 आपको लगाना पड़ेगा उसके अंदर। अब वो ऑप्शन दो देता है, या तो कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू। सर आपने उसकी इन्वेस्टमेंट की थी परचेज 100 रुपीज के अंदर, 100 रुपीज पर शेयर। आपकी कंपनी को लगता है कि नहीं नहीं वी नीड टू फॉलो कॉस्ट मॉडल, आप क्या करोगे, सीधा दिखाओगे इन्वेस्टमेंट इन आपका रिलायंस 100 रुपीज कॉस्ट, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आपकी आगे वैल्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट सर आपको क्या लगता है, आपको लगता है नहीं भैया नहीं नहीं, जब आपने परचेज किया था तब तो वैल्यू थी 100 रुपीज, अब साल की आखिरी डेट है, अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 520 रुपीज। अब एक बात बताओ, अगर आप कॉस्ट मॉडल को इंप्लीमेंट करोगे, यू कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस, बट इफ यू इंप्लीमेंट द फेयर वैल्यू, आप क्या दिखा सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस फेयर वैल्यू 520 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर, सोच सकते हो 420 रुपीज पर गेन, 420 रुपए का सर आ गया गेन। इससे क्या होगा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जो कंपनी की ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज हो जाएंगी, जो कंपनी की पीई रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज एन ऑप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड। अगर फेयर वैल्यू मॉडल चूज किया देन इंडिया इज एप्लीकेबल, अगर कॉस्ट चूज किया देन इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल। ओके अंडरस्टैंड, आगे बढ़े। आदित्य सर यू कैन नॉट चेंज मॉडल ईच टू ईच ईयर, आपको उसके लिए इंडिया 8 पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाला, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग। और इस आपने जो इनका एक क्वेश्चन आया कि क्या हम मॉडल एवरी ईयर चेंज है कर सकते, कैन वी चेंज मॉडल एवरी ईयर, ये क्वेश्चन आया मेरे पास। अब एक बात बताओ, इंडियस 1 पर आ जाते हैं हम। इंडियस 1 का सर एक मेन फीचर है, मेन फीचर क्या, कि जो भी आपकी है, आपकी क्या प्रेजेंटेशन, डेट मस्ट बी कंसिस्टेंट बेसिस। अगर आप हर रोज चेंज करते रहे, हर साल चेंज करते रहे, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके रिलायबल है वो नहीं रहेंगी। इट मे बी चेंजेस ऑन द एक्सेप्शनल बेसिस। यस यस यस, अगर चेंज किया 3 बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेंगी एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो चलिए सर आपको ये भी समझ आ गया। देखिए अभी ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना, बाद में आऊंगा फिर से पूछूंगा, फिर आप बोलोगे नहीं 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 आपने पहले कुछ और बोला था अब कुछ और हो रहा है। ध्यान से इस बात को सीखना। इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद 2728 अगर कॉस्ट मॉडल है, इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल। योगेश सर अगर आपने कॉस्ट मॉडल यूज किया कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पैसा पे किया, आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई खत्म, पैसा वहां से गया, बैंक आपका क्या हुआ, कोई इंप्लीकेशन नहीं है सर, कंपनी की अपनी इच्छा है। अगर फेयर वैल्यू मॉडल किया तो ये इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके चलो सर अब आते हैं मेन हमारा। यस विनय कुमार सर, अगर आपने इंडिया 8 अप्लाई किया देन इट विल बी 100% रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आप बिना उसके चेंज नहीं कर सकते एज पर इंडिया 8। ओके सर, चलो सर अब आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट। अभी तक समझ आया सभी को? यस या नो प्लीज सर, यस या नो बोल दीजिए, सारे बोलिए जो भी हैं आपके 150 प्लस है, एटलीस्ट 50 तो यस बोल दें ताकि मुझे पता लग जाए कि यस आप हो, यहाँ पे यू आर सेशन, आप अटेंडिंग सेशन हो रहा है अच्छे से। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं,
फाइनेंशियल असेट क्या बात है सर, आपने बताया था इस इंडियस में 3 बातें लिखी हुई हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, समझ आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वी आर टोटली, हमको पता लग गया। एक्सेप्शंस वी ऑल्सो गेट देयर। नाउ meaning of financial asset, meaning of financial asset. So a financial asset is any asset, a financial asset is any asset that is cash. If your company is having a cash, that means it is your financial asset. If your company is having cash, if an entity is having cash, that means it is your part of financial asset. Second, an equity instrument of another entity means, for example, you have invested in the equity shares of any companies, then that investment should be qualified as financial asset. Have you understand or not? This is a simple definition. We need to follow this 5 points. हमको जब भी चेक करना है कि whether this is for financial asset or not, we need to check only 5 point A, B, C, D, E. Qualify किया then okay, नहीं किया financial asset नहीं है। पहला क्या है? If financial asset is any asset that is cash, if you have available with cash, that means it is 100% of your financial asset. If you are having investment in the equity instrument, only equity word is there, not that word is there, only equity instrument is there, pure equity. Now I am asking you a question, please मुझे इसका आंसर बताना, please give me reply on the basis of first 2 points, only on the basis of first 2 points I am asking you a question. We have a bank balance, we have a bank savings bank account, and in the savings bank account we have 2 lakh rupees on the bank, and the bank account is of companies. So क्या बताइए, क्या वो मेरा फाइनेंशियल असेट होगा या नहीं होगा? मतलब मेरे पास बैंक में 2 लाख रुपए पड़ा है, एक कंपनी के पास बैंक में 2 लाख रुपए पड़ा है क्या वो फाइनेंशियल असेट होगा? ओके ओके ओके, everybody is saying yes. क्या बात है सर, क्या बात है, of course, क्या बात है सर, सभी ने yes बोला। मैं बोल रहा हूं it is not our financial asset, it is not at all our financial asset. अगर मैं सिर्फ 2 पॉइंट की बात करूं A and B की, फाइनेंशियल असेट नहीं है सर। क्या कैश है क्या वो? It is not cash and cash equivalent, it's only written cash. Cash means hard money in your pocket, in the company, on hand. It is written cash on hand, not cash and cash equivalent. Now you understand? If we have a money in our bank account, that means it is cash equivalent. It is not at all a cash. So अगर कोई बैंक में पैसा है तो वो हमारा फाइनेंशियल असेट नहीं है, as per part 1 and part B, as per A and B. समझ आया आपको? अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक और नॉट? प्लीज रिप्लाई ना। गलती खा गया आप, you have misread a single word. Every single each word had its own value. It is only written cash. Understood na? Now 2 point is there, cash and equity instrument of another entity. Now we have unlighting the third thing. आइए चलिए सर, अब ये बंद करते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, A हो गया, B हो गया। थर्ड, a financial asset is any asset that is a contractual right to receive cash, a contractual right to receive cash। अब मुझे बताइए, आपने ये थर्ड का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। नाउ मैं बोलता हूं कि मेरे पास बैंक में 2 लाख रुपीस पड़े हैं, ए कंपनी इज हैविंग 2 लाख रुपीस इन अ बैंक अकाउंट। बैंक इज एनी बैंक, बैंक इज एनी बैंक, PNB, SBI, you have a contractual right to receive cash
from that bank. You have, this is not current asset, we are talking about financial asset. Financial asset may be current or may be non current. I am explaining you कि बैंक क्यों आता है, because you have a contractual right to receive cash. That's why अगर पैसा बैंक में पड़ा है, it's covered in part C of the point. If we have money in the bank account, it is covered by part C of that point. क्योंकि you have a contractual right to receive cash. Sir, you have a contractual right to receive cash. आपने किसी को लोन दे दिया, आपने मुझे लोन दे दिया. अब एक बात बताओ, वो कौन से पॉइंट में आएगा? क्या ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? योर कंपनी हैज गिवन लोन, योर कंपनी हैज गिवन लोन टू another entity and the loan is repayable after 5 years. It is financial asset or not? Why so, sir? Why? Because sir, see, sir, cash तो नहीं है, out. Sir, cash नहीं है, खत्म. Second, equity instrument भी नहीं है, खत्म. But sir, one thing is that sir, a contractual right to receive cash. मेरे पास right है कि मैं सामने वाली पार्टी से पैसा ले लूंगा. That's why loan is our क्या है? Financial asset. अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्रेड रिसीवेबल, आपने किसी को सामान सेल किया, वो बोलता कि सर अभी पैसा नहीं दूंगा, बाद में दूंगा पैसे आपको, तो क्या हुआ, क्या बन जाएगा? डेटर्स. ट्रेड रिसीवेबल इज योर फाइनेंशियल असेट बिकॉज यू हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. लिंक कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे? हैव यू इंटरलिंकिंग, हैव यू थिंकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स? आपके सामने ट्रायल बैलेंस रख दिया हमने. सी मनीत, आप यहां पे एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछ लो, अभी क्या है, आप पॉइंट्स पे फोकस कीजिए. कॉलेबल है नहीं है वो आप देखिए ना, भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है या नहीं है. आपने किसी को लोन दे दिया और वो लोन क्या है? लोन इज अ गिफ्ट. लोन क्या है आपका? क्या है? गिफ्ट है. और आपको नहीं पता पैसा आएगा या पैसा नहीं आएगा. दैट मीन्स इट इज नॉट योर फाइनेंशियल असेट. सो ये सारी चीजें आती हैं इसके लिए. ट्रेड रिसीवेबल, इट इज अवर फाइनेंशियल असेट because we have a contractual right to receive cash. That's why. Now again second point, हमने इसको यहां से रिमूव कर दिया. अगला, a contractual right to receive another financial asset from another entity. A contractual right to receive another financial asset from another entity. For example, sir, एक example. For example, आपने किया क्या? आपने सेल किया, सेल अ प्रोडक्ट to company X for 5 lakh rupees. Okay, ठीक है सर. Company X will give 5,000 equity shares of Reliance to your company. बताइए क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? Whether this is a financial instrument or not. Bill receivable is yes. See, बताइए please think about that. You are receiving equity share of another company. C point is there, a contractual right to receive another financial asset from another entity. I need at least 20 replies. Whoever is listening, please reply, sir, because ये सेशंस आपके लिए हो रहे हैं. ऐसा क्यों? Why? सर आपको वहां से क्या मिल रहा है? आपने सेल किया, आपको कैश नहीं मिल रहा, सामने वाला कैश नहीं दे रहा आपको.
यू हैव नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, नहीं है सर, तो क्या है सर? सामने वाला आपको किसी दूसरी कंपनी के, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दे रहा है. That means sir you are taking another financial asset, because an equity investment of other entity is our financial asset, and we are taking financial asset. So this is our financial asset. This type of transactions are also qualifies as a financial asset. Okay. Yes or no? Have you exploring or not? कुछ नया सीखने को मिला? इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? सर द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग और नॉट, और इट्स अ बोरिंग टॉपिक. सर क्या करेंगे पढ़ के इस टॉपिक को? सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू एनी इंटरव्यू. फर्स्ट क्वेश्चन एंड इंटरव्यूज आस्क अबाउट दिस Ind AS. When I go to my interview, let me share my story. मेरा पहला इंटरव्यू था, my first interview was on ONGC. ONGC गवर्नमेंट कंपनी है सर. पैकेज था 26 लाख रुपीज का. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी, ठीक है, हमारी फील्ड थी Ind AS की. द CFO ऑफ द कंपनी इज देयर, एंड पता है उसने क्या क्वेश्चन पूछा मुझसे? आप सोच नहीं सकते, इतना सिंपल क्वेश्चन मुझसे पूछा उन्होंने. कहते सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Ind AS 32 एंड Ind AS 109, आप ये बता दीजिए. और हम बंदे Ind AS वाले हैं, हम तो खा गए उस क्वेश्चन को. हमने तो उस क्वेश्चन को ऐसा एक्सप्लेन किया, द कंपनी बोलिंग ओके सर वी हैव एक्सेप्टेड यू. इन 4 minutes my interview was over, complete, and I got the offer from ONGC. Just only saying one question answer, but hopefully मेरा पैशन नहीं था जॉब करने का, तो मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया. But the thing is that sir this Ind AS is very important for you, and this course is there for only for the knowledge purpose. And I again thank Voice of CA team जिन लोगों ने आपके लिए कोर्स किया ऑर्गेनाइज. Okay. A financial asset is any asset that is cash. Sir, first is cash. Second, equity instrument of another entity. Third, a contractual right to receive cash. Sir, third point, a contractual right to receive cash. Fourth, another financial asset from another entity. Okay, sir, great. ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के. ग्रेट. आपने किया क्या? आपकी कंपनी ने किया क्या? नाउ अगेन वन वेरी गुड एग्जांपल. एक कंपनी है ABC लिमिटेड. उस कंपनी ने क्या निकाले? अपने बॉन्ड्स निकाले. बॉन्ड्स 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या निकाले? बॉन्ड निकाले, और आपकी कंपनी ने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया. यूर कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन ABC लिमिटेड बॉन्ड्स एंड द बॉन्ड इज रिपेबल आफ्टर 5 years. बताइए वेदर इट इज अ फाइनेंशियल एसेट और नॉट. इट इज अ फाइनेंशियल एसेट और नॉट? प्लीज रिप्लाई. all the participants are requested to speak, because if you yes or no, please, I wanted your honest answer. Why? Because you have a contractual right to receive cash. Because you have a contractual right to receive cash, that's why it is your financial asset of company. Now great sir, you have understand the thing also. I'm asking you a very another question. Prepaid rent. Think about this. Prepaid rent. You have paid rent in advance. You have paid rent in advance for 1 year. It is financial asset or no? जब भी आपको सोचना है, बहुत ही सिंपल है लॉजिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. आपको ये सोचना है कि आपने रेंट पे किया. रेंट पे किया तो क्या हुआ? पहला पॉइंट, क्या ये कैश है? क्या जो आपने प्रीपेड रेंट पे किया क्या ये कैश है? नहीं सर, कैश तो नहीं है, सो आउट.
क्या ये आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है? क्या आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाया? नहीं सर। थर्ड, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? नहीं सर, यू हैव नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, बिकॉज आपको ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला, आपने पहले पे कर दिया, आपने 1 साल का रेंट पहले पे कर दिया। यू हैव अ नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। सर्विसेज की बात हो ही नहीं यहाँ पे, ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, इट्स अ राइट टू रिसीव सर्विसेज। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड बॉन्ड? सर आपने किसी कंपनी के 8% के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया सर, 5 साल बाद कंपनी क्या करेगी? आपको पैसा वापिस देगी ना। सो यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, दैट्स व्हाई इट इज फाइनेंशियल एसेट। सागर सर अब आ गया समझ आपको? व्हाई बॉन्ड इज देयर इन? सो आपका जो प्रिपेयर्ड रेंट है, देन वेयर टू शो प्रिपेयर्ड रेंट पे? सर कहां शो करोगे सर? अदर में जाएगा, ये अदर्स के अंदर, अदर करंट असेट के अंदर। वाह, समझ आ गया? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े या नहीं बढ़ना? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ग्रेट। अब सर एक और पॉइंट आ गया सर, एक और पॉइंट आ गया। चलिए सर, अभी मैं थोड़ा सा लाइबिलिटी पार्ट पे आ जाता हूं सर। एडवांस गिवन टू वेंडर, चलो सर। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड? भैया इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड क्या करोगे? एक बात बताओ सर, किसने क्वेश्चन पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है हमारे हमारे प्रदीप सर ने, कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड का क्या होगा। अब एक बात बताओ सर, जब इंटरेस्ट मिलता है तो क्या एंट्री पास करते हो? बताओ प्रदीप जी, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। क्या बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट गया इसका? क्या बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट गया इसका? नहीं गया ना सर। तो क्या हो जाएगा? सीधा इनकम टू बैंक, खत्म। मान लो फॉर एग्जाम्पल यू हैव एक्रूड इंटरेस्ट, कंपनी इज नॉट पेइंग, कंपनी बोल रही है कि नहीं भैया बाद में देंगे, तो एक्रूड इंटरेस्ट इज योर फाइनेंशियल एसेट बिकॉज यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश for the interest purpose. So if you have any accrued interest, that means it is your financial asset. समझिए इस बात को। ग्रेट ग्रेट, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। कोई आपको कंपनी की बैलेंस शीट दे दे, I am only asking sir, we will also interest? Yes sir, we need to consider interest sir. अगर इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम कहां से होगा? कैन यू प्लीज गिव अनदर एग्जांपल? मैम डोंट वरी, एग्जांपल है हमारे पास, नॉट टू वरी एट ऑल। एक क्वेश्चन पूछा, देखो सर दो पार्ट है, एक तो है लोन टू एम्प्लॉय, एक है एडवांस टू एम्प्लॉय। बताइए सर, वन इज लोन टू एम्प्लॉय, सेकेंड इज एडवांस टू एम्प्लॉय। सबसे पहले बताइए, अगर लोन दिया मैंने एम्प्लॉय को तो क्या ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? 20-30 रिप्लाई आने चाहिए। जिसको इंटरेस्ट आ रहा है वो रिप्लाई कीजिए, क्योंकि काम की चीज है ये आपकी, बिकॉज वी हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। यस और नॉट? यस, ग्रेट सर, ग्रेट। बट सर अगर ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपको बैलेंस शीट में मिलेगी ही मिलेगी, दिस इज 100% चांसेस इज दैट कि आपको ऐसी जो ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस शीट में मिल जाएंगी, कि किसी को लोन दे दिया, किसी को आपने एडवांस दे दिया। इफ वी हैव गिवन एडवांस टू अवर एम्प्लॉइज, क्या वो मेरा एफए बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मैंने एम्प्लॉइज को दिया एडवांस, क्या ये मेरा फाइनेंशियल एसेट बनेगा या नहीं बनेगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्लीज रिप्लाई फास्ट फास्ट, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। सर नहीं बनेगा। एडवांस टू एम्प्लॉइज इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट बिकॉज वी आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। ये हमने उसको एडवांस दे दिया। एडवांस इज ऑलवेज फॉर सम सर्विस, सम सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैपिटल एडवांस दे दिया,
कैपिटल एडवांस, ये भी होता ही होता है कि आपने बहुत बड़ा प्लांट लगाना था, यू हैव टू इंस्टॉल प्लांट एंड यू हैव गिवन 50,000 एडवांस, कैपिटल एडवांस टू द वेंडर, that 50,000 advance to the vendor is not financial asset. समझा या नहीं समझा लॉजिक? Have you understand the logic or not? अब मुझे एक बात बताओ, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट माइंड में आया, वैसे इस टॉपिक का नहीं है बट फिर भी फॉर योर नॉलेज पर्पस, अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट को आपको देखने का मौका मिले या ऑडिट कर रहे हो, एक केस देता हूं बना के, आपने कैपिटल एडवांस दिया, कैपिटल एडवांस टू वेंडर ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, कब दिया? ये आपने दे दिया सर 20 मार्च को, 20 मार्च 2022, और आपको ये पता है विद इन 1 मंथ, मतलब 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल 2022 तक आपका जो ये 1 लाख रुपए का जो आपने कैपिटल दिया है आपने एडवांस, उसकी जो सर्विसेज हैं वो आपको जो है रिसीव हो जाएंगी। डेट एडवांस मे बी फॉर स्पेयर पार्ट, मे बी फॉर एनीथिंग, बताओ ये आपका कहाँ जाएगा? ध्यान रखना विद इन 1 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग जो पीरियड है, विद इन 1 मंथ आपको जो भी उसकी सर्विसेज है वो आपको रिसीव हो जाएंगी। दिस इज नॉट अ एफए 100% कि ये हमारा फाइनेंशियल असेट तो नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन क्या है सर, मेरा क्वेश्चन क्या है, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे कि क्या ये सीए है? सीए मतलब क्या ये आपका है या नॉन करंट असेट है? मुझे बस ये जानना है वेदर इट इज करंट असेट और नॉन करंट असेट। आप में काफी सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रैक्टिकल केस लो है, सबने क्या बोला? करंट 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 बोल रहे हैं सारे। इट इज नॉन करंट असेट सर, ध्यान रखना इस बात को, नोट कर लो, एवरी कैपिटल एडवांसेस इज नॉन करंट असेट। सर क्यों बोला आपने? क्योंकि कैपिटल एडवांसेस इज 100% लिंकेज टू द नॉन करंट असेट पार्ट, और ये गाइडेंस शेड्यूल 3 के अंदर भी दी हुई है। डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 हमेशा एक ही बात बोलता है कि अगर कैपिटल एडवांस दिया है तो 100% ये आपका नॉन होगा, नॉन करंट, चाहे वो एक दिन में वापस मिल जाए उसकी सर्विस या 5 साल में मिले, 100% नॉन करंट। समझ आ गया? समझ आया नहीं आया? कुछ नया पॉइंट सीखने को मिला कि नहीं मिला? किसी कंपनी की बैलेंस शीट में जाके देखना, देख लेना सर, नॉन में मिलेगा। अगर गलती से किसी कंपनी ने दिखा दिया करंट के अंदर, बोल देना सर यू आर नॉट कंप्लाइंग विद इंडियस, बोल देना सर यू आर नॉट कंप्लाइंट विद इंडियस, योर बैलेंस शीट इज नॉट इंडियस कंप्लाइंट, यू आर नॉट फॉलोइंग इंडियस 1, बिकॉज इंडियस 1 क्या बोलता है कि आपको सारे इंडियस कंप्लाई करने मैंडेटरी हैं। अगर आपने एक भी इंडियस का एक भी पॉइंट कंप्लाई नहीं किया, योर बैलेंस शीट इज नॉट इज treated as non-Indias compliant balance sheet। सेबी जो केस करेगी बात अलग है, लेकिन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, एज अ कंसल्टेंट, वी नीड टू स्टिक टू दैट पार्ट। इसी बात के क्या मिलते हैं? कैसे मिलते हैं सर? इसी बात के हमारी वैल्यू है, इसी बात की हमें सामने वाला जो क्लाइंट है पैसे पे करता है। और दूसरी चीज आपको मैं एक बात और बता दूं, कैपिटल जो आपके एडवांस हैं कभी भी कैपिटल वर्क इन जो प्रोग्रेस के अंदर नहीं साथ होंगे। कैपिटल वर्क इन जो आपका प्रोग्रेस है कभी भी उसके साथ कैपिटल एडवांस मैच नहीं करेगा। हमको दोनों सेपरेट सेपरेट शो करने पड़ेंगे, इट्स मैंडेटरी। कुछ कंपनी क्या करती हैं, कैपिटल आपने, कुछ कंपनी क्या करती हैं कि आपने दिया 1 लाख रुपए का कैपिटल एडवांस, क्या करेंगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ऐड कर देंगी। तो सर दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, आपको सेपरेटली शो करना मैंडेटरी है। जब सामान आ जाएगा, जब आपकी सर्विसेज हो जाएंगी रिसीव, देन यू कैन कैपिटलाइज इट, बट एक साथ नहीं दिखाना। ओके क्लियर? 2 पॉइंट और आपको नहीं सिखा दिए, नोट कर लेना इसको।
कोई भी नहीं बताएगा आपको, गारंटी ले रहा हूं। सिर्फ 4 ने बोला, बाकी कहां गए? बाकी नहीं सुन रहे क्या? रिपीट सर प्लीज। देखिए नितिन जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा, और जो कैपिटल आपके जो एडवांसेस हैं वो भी आपको सेपरेटली शो करने होंगे, एक साथ आप दोनों को नहीं दिखा सकते, बस ये बात बोली थी। चलिए सर, अब बढ़ते हैं आगे वाले मोशन ट्यून पर। अभी आ जाओ भाई। व्हाट अब ओपेक्स एडवांस इज एफए? नोट एट ऑल। आपने कोई एक्सपेंस पहले पे कर दिया, कभी एफए हो ही नहीं सकता सर। अनिल सर, कभी भी एक्सपेंसेस आर नॉट एफए सर। अगर हमको फाइनेंशियल एसेट बनना है, एक बात ध्यान में रख लो, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, whether it is cash or an equity investment or a contractual right to receive cash or a contractual right to receive another FA, तभी वो आपका वो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा FA। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, लायबिलिटी पे आते हैं, क्योंकि 3 पार्ट है हमारे पास। क्या है? इक्विटी, लायबिलिटी और FA। तो आपका फाइनेंशियल एसेट तो हो गया, और आपको पता है कि FA का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है सर? व्हाट इज द एक्चुअली द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? की इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू financial asset for one entity and financial liability or equity for the another entity. Now we are moving forward to financial liability. FA में क्या था? एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। सर डेरिवेटिव पार्ट में सर समझाया जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। प्रभदीप थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ समझाया जाएगा। आई विल इंटरलिंक ऑल द थिंग्स, डोंट वरी, डोंट थिंक दैट कि मैंने छोड़ दिया वो पार्ट। सर फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या था, क्या होगा सर? वहां पर क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। वी हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश इन फाइनेंशियल लायबिलिटी पार्ट ए। वी हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। we have a contractual obligation to deliver cash is the first point. अगर कोई obligation है कि हमको कैश देना है, that means it is our financial liability. Second, a contractual obligation to another financial asset to another entity. अगर आप अपनी कंपनी का किसी और दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी का दे रहे हो असेट, क्या होगा? वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा आपके लिए। समझ आया कि नहीं समझ आया? जो आपका फाइनेंशियल है एसेट, उसका क्या कर दो? अपोजिट कर दो। अगर वहां पे था एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, यहां पे क्या हो जाएगा? एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। और वहां पे क्या था? एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल असेट। अगर फाइनेंशियल असेट में है रिसीविंग का राइट, यहां पे क्या है? गिविंग का ऑब्लिगेशन। समझो मेरी बात को, समझ? दो ही ओनली आई हैव गिवन 2 रिप्लाईज। I will give example, same to same example. हमने जो एग्जाम्पल कौन सा लिया था? We have taken this example, ये वाला एग्जाम्पल, कि आपने सेल किया, आपने किया क्या? सेल किया प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट सेल किया 5 लाख रुपीस के अंदर। किसको सेल किया? कंपनी को, कंपनी एक्स को। आपकी कंपनी कौन सी थी? आपकी कंपनी थी कंपनी वाई। अब कंपनी वाई को क्या मिलने वाला है? कंपनी एक्स विल गिव 5000 इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस टू योर कंपनी। मतलब कंपनी वाई को 5000 इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं। अब कंपनी वाई के लिए क्या बन जाएगा? इट इज फाइनेंशियल असेट, बिकॉज ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट
टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल असेट। अब कंपनी एक्स की बात सोचो, कंपनी एक्स के लिए क्या होगा, कंपनी एक्स के लिए क्या होगा, कंपनी एक्स को देने हैं अपने शेयर्स, कंपनी एक्स को क्या देने हैं 5000 या 500 जो भी हैं, अपने जो रिलायंस के शेयर हैं सामने वाले को देने हैं, देने हैं। एक बात बताओ, ऑब्लिगेशन है या नहीं है? इट इज ऑब्लिगेशन और नॉट? डेफिनेटली सर इट्स अ ऑब्लिगेशन। कैश की नहीं है सर, इक्विटी नहीं है। मुदित साहब, आपकी खुद की कंपनी के शेयर नहीं है, रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, तो आपकी इक्विटी कहां से बन गई है? आपके पास तो इन्वेस्टमेंट थी ये वाली। दिस इज अनदर असेट, आपने दूसरी फाइनेंशियल असेट सामने वाले को दे दी, क्या हो जाएगा? खत्म। आपकी क्या बन जाएगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और एक और आपको मैंने क्या आपसे क्या लिया था मैंने एग्जांपल, क्या क्वेश्चन आया अभी? फॉर accounting X, it is a financial liability as you are giving financial asset. Exactly my point, sir. Exactly my point. अब एक वही केस था हम जो अभी करके आए हैं। क्या केस करके आए हैं? 8% बॉन्ड्स, कंपनी एक्स ने किया क्या? 8% बॉन्ड रेज कर लिए, मतलब कंपनी एक्स ने बॉन्ड क्या किए? इशू किए हैं। अब एक बात बताओ, कंपनी एक्स के पास, कंपनी एक्स ने किया क्या? बॉन्ड क्या किए? इशू किए हैं, ठीक है। और कंपनी एक्स को ये बॉन्ड्स का पैसा रिपेबल करना है, रिपेबल आफ्टर 5 इयर्स। कंपनी एक्स के लिए बताइए बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? कंपनी एक्स के लिए बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएंगे। क्यों? पता कारण क्या है? यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू गिवन कैश, आपको पैसा देना है सामने वाले को, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा ये? दैट्स वाई हो जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। लोन है, मान लो कोई लोन का पैसा है, आपको सामने से मिला है, लोन मिला है, और लोन का पैसा करना है, तो क्या होगा? ये भी तो फाइनेंशियल असेट बन जाएगा ना साहब, बन जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने काटा किसी का टीडीएस, आपने किसी कंपनी को पे किया 5 लाख रुपीज एज आ प्रोफेशनल फीस, आपने किया क्या? 50,000 रुपीज का तो जो टीडीएस है वो डिडक्ट कर लिया और 4.5 लाख कैश में दे दिया। बताओ ये जो 50,000 रुपीज का जो आपका टीडीएस है, ये क्या है? ये क्या है सर? क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है? दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि सर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है सर, इट्स द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट एट ऑल अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। सो कोई भी आपका पैसा है, फॉर एग्जांपल आपका पीएफ है पेबल, कोई आपका जीएसटी पेबल है, कोई आपका ईएसआई पेबल है, कोई आपका टीडीएस पेबल है, ये सारे के सारे ये क्या है? फाइनेंशियल। एज वी डू नॉट हैव टू पे इन कैश, ऐसा नहीं है सर, कैश के अंदर भी आप पे कर सकते हो, बट मेन कंडीशन इज दैट ना सर, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। वी हैव अ नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इट्स द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। दैट्स व्हाई ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे अनदर का, अदर नॉर्मल, अदर करंट लायबिलिटी, बट ये कभी भी फाइनेंशियल के अंदर नहीं जाएगा। ये बड़ी काम की चीज है। किसी कंपनी की वो देखना उठा के, किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को चेक करना, वहां पे पता लग जाएगा कि क्या फाइनेंशियल असेट है और क्या लायबिलिटी है, और सोचना कि क्यों है ये चीज। तो बहुत सारी हैं बातें। चलो फटाफट मैं एक बैलेंस शीट पे लेके जा रहा हूं आपको, कि ये कोर्स है ना, जो टाइम लगेगा आपको, 3 दिन लगेंगे, बट समझ आ जाएगा। एक्सपेंसेस पेबल 100%, यार कैसी बात करते हो सर शिवशंकर अग्रवाल सर, कैश पे करना है आपको। If we have an obligation to pay cash, then it's your financial liability. TDS deposit, sir, it is not a contractual obligation. Naveen sir, it is not at all a contractual obligation. हमने सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इट्स द, ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है सर।
नवीन सर, दिस इज नॉट एट ऑल अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था आपके उसके बीच में कि आपको उसको वो करोगे। सैलरी पेबल इज डेफिनेटली अ फाइनेंशियल एसेट यार। You can sue the person, but you cannot take 50,000 rupees from that person. You can sue the person, but वो पैसा आपको थोड़ी देगा, गवर्नमेंट को देगा पैसा, वो तो आपको तो पैसा नहीं मिलने वाला ना। फाइनेंशियल लायबिलिटी होने के लिए एक चीज ध्यान रखना सर, मैंने क्या बताया था आपको, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनना है किसी एक को, फाइनेंशियल असेट भी बनना पड़ेगा ना। जो टीडीएस आपका रिसीवेबल होगा, क्या वो आपका फाइनेंशियल असेट है? नवीन सर, क्या वो आपका फाइनेंशियल असेट है क्या? टीडीएस रिसीवेबल, क्या बताओ सारे लोग, टीडीएस रिसीवेबल फाइनेंशियल असेट है या नहीं है? फटाफट एक बात बताओ। कभी भी नहीं हो सकता, 100% नो, इम्पॉसिबल है। क्यों? कैश तो नहीं है सर, इट इज नॉट कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तो जब ये है ही नहीं तो ये फाइनेंशियल एसेट हो ही नहीं सकता सर, सवाल ही पैदा नहीं उठता। दिस इज अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। आ जाइए सर, फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं साहब। सर ये प्रॉपर्टी, ये बैलेंस शीट सबको दिख रही है ना? फटाफट देखते हैं। दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस, फटाफट। ठीक है सर, ओके। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर ये फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्यों नहीं आया? फाइनेंशियल एसेट में क्यों नहीं आया सर? क्योंकि सर कैश तो नहीं है, कैश भी नहीं है। दूसरी चीज, किसी कंपनी का इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के बारे में नहीं सोचना, सारी बातें सोचनी है। कैश भी नहीं है, किसी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, आपको राइट भी नहीं है कैश रिसीव करने का, आपको कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं मिलने वाला। सो दैट्स व्हाई इसको सेपरेट शो कर दिया। अब मैं आता हूं फाइनेंशियल असेट के अंदर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अब देखना, ट्रेड रिसीवेबल क्या हमारे फाइनेंशियल असेट है? सर बिल्कुल है, अगर है तो आ गए ना उसके अंदर, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ गए ना। लोन भी आ गया, देखो लोन आपने किसी को दिया, आ गया ना फाइनेंशियल असेट के अंदर। इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो शेयर में किया हो, डेट इंस्ट्रूमेंट में किया हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, आपको पैसा तो वापस सर मिल ही जाएगा ना। सो इट इज आल्सो अवर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एनीथिंग। तो ये भी क्या आ गया? फाइनेंशियल असेट के अंदर आ गया। अब ये क्या है? अदर फाइनेंशियल असेट। देखते हैं ऐसा कौन सा है भाई। उसके बाद हमारा आ गया कौन सा पोर्शन? सीए वाला, करंट असेट वाला पोर्शन, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन, बैंक बैलेंस। फिर आता है अदर फाइनेंशियल असेट, फिर आता है अदर फाइनेंशियल असेट। व्हाट ट्रेड रिसीवेबल इन बोथ सीए एंड सीए? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर। अगर कोई बंदा आपको 12 मंथ तक पैसा नहीं देगा, नॉन में डालना पड़ेगा। इंडियाज 1 की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको इंडियाज 1 पढ़ना पड़ेगा। आई ऑलवेज से वन थिंग, every Indias is interlinked with each other. Loan which are about to bad debt, सर एनपीए कभी भी नहीं होता, ये इंडिया 109 के अंदर आएगा। वाई इन्वेंट्री नोट एफए, एक क्वेश्चन आया है सर। एक बात बताइए शिवशंकर सर, क्या इन्वेंट्री आपकी क्या है? कैश है क्या? क्या जो इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा है कैश है क्या? शिवशंकर सर आप बताओ। सिर्फ रिप्लाई देंगे शिवशंकर अग्रवाल जी, क्या आपकी इन्वेंट्री कैश है क्या? फर्स्ट पॉइंट, नहीं है।
सेकंड, क्या आपकी कंपनी की जो इन्वेंट्री है क्या ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है सर। क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है? सर जब सेल करोगे तब की बात है ना, अगर सामान नहीं बिका तब क्या कर लोगे? क्या आज की डेट में 31 मार्च की डेट में जब बना रहे हो, क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है क्या कैश रिसीव करने का? गारंटी क्या है कि सारा माल बिक जाएगा? अनिल बंसल सर, इसके लिए आपको इंडियस 1 पढ़ना पड़ेगा। इंडियस 109 हमें बताता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये नॉन करंट में जाएगा, करंट में जाएगा, कैसे होगा ये आपको इंडियस 1 बताएगा। इंडियस 1 उसके लिए आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे इंडियस इंटरलिंक है। इंडियस 1 क्या बोलता है? अगर कोई ऐसा आपका पैसा है जो आपको लगता है कि 12 मंथ में नहीं मिलने वाला आपको, तब आपको उसको दिखाना पड़ेगा नॉन करंट के अंदर। सब्सिडरी की कोई बात नहीं सर, आपको दिखा देंगे। शिवशंकर अग्रवाल सर बताइए सर, आपको समझ आ गया कि इन्वेंट्री कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं बन सकती? अब आता है सर कॉन्ट्रैक्ट असेट। कॉन्ट्रैक्ट असेट ये आते हैं हमारे एज पर इंडियस 115। कॉन्ट्रैक्ट जो असेट बनती है या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज बनती हैं, ये एज पर इंडियस 115 बनती हैं। और अगर कोई चीज एज पर इंडियस 115 हो रही है तो उसके लिए इंडियस 109 इज नॉट एप्लीकेबल। फिर करंट असेट। अब चलते हैं इसके नोट्स पे, 7th पे आ जाओ फटाफट। आज यही हो पाएगा 7th में। चलो पहले चलते हैं, देखिए सर, नॉन करंट ट्रेड रिसीवेबल। फर्स्ट टाइम अगर किसने पहली बार देखा ना ये नॉन करंट ट्रेड रिसीवेबल, तो शॉक नहीं होना, यू नॉट नीड टू शॉक। अगर वो 12 मंथ के ऊपर गए या जो आपके ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर चले गए, तो आपको नॉन में दिखाना पड़ेगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके लिए इंडियस 1 आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड कंसीडर गुड्स, ठीक है सर। आल्सो लिखा हुआ है कि आल्सो रेफर नोट नंबर 37, ये बैलेंस शीट आपको मिल जाएगी। चलो सर, अब आते हैं सर, आज आओ क्या समझाया था अभी, अदर नॉन करंट असेट, मतलब ये फाइनेंशियल असेट नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एडवांसेस। क्या बताया था? 100% नॉन करंट होगा और कभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर साथ नहीं लिखा होगा। और जो आपका है प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमें पता है सर, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, इट इज नॉट अवर फाइनेंशियल असेट। दैट्स व्हाई यहाँ पे आ गए। समझ आ रहा है प्रैक्टिकली देख के? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, इट्स नॉट हार्ड, ओनली कॉन्सेप्चुअल, ओनली कॉन्सेप्चुअली। यू हैव टू, कंपनीज आपके पास आएंगी, कंपनी विल कम एंड आस्क सर वेदर इट इज अ फाइनेंशियल असेट और नॉट, तो आप बड़ी हैवी फीस चार्ज करोगे। यू विल चार्ज हैवी फीस फॉर दिस, ओनली फॉर दिस। आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, वो बड़ा आपको देगी, पैसा कमा के देगी आपको, बट नॉलेज होनी चाहिए सर। तो yes, it is possible सागर सर, इट्स पॉसिबल, इट कैन बी करंट असेट आल्सो, बट यहाँ पे नॉन करंट लिखा है, दैट मींस 1 साल से ऊपर होगा, 100% ऊपर होगा। तो समझ गए इंपॉर्टेंस? हैव यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंडिसेस? क्या अभी भी नहीं समझा इंपॉर्टेंस आपको? आज से पहले समझ आया था कभी? सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि आज के पहले समझ आया था? एवरीथिंग प्रैक्टिकली कैसे चलता है, क्या थिंकिंग होनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, एवरीथिंग इज इजी है, इजी है, सिंपल एज दैट। चलिए सर आ जाओ, इन्वेंट्री भी नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल आ गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। एक चीज आपको और अभी वो देता हूं गाइड, कैश ऑन हैंड होता है, कैश इन हैंड नहीं होता। अगर किसी कंपनी में आपने देख लिया कैश इन हैंड, तो बोल देना यू आर नॉट कंप्लाइंग विद इंडियस। सर शेड्यूल 3 साथ साथ बोलता है, सर शेड्यूल 3 साथ साथ बोलता है कि सर कैश ऑन हैंड होता है, कैश इन हैंड नहीं होता। वाई सो सर, रिक्वायरमेंट है, अब क्या करें?
उन्होंने बोला कैश ऑन हैंड, बस वर्ड चेंज कर दिया। ये एमसीए ने बोला और ये इंटरनेशनली क्या रिकॉग्नाइज्ड है अभी, कैश ऑन हैंड। अब जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उसको पता होगा यार इन और ऑन में क्या फर्क है। कैश इन हैंड मतलब कैश आपकी जेब के अंदर पड़ा है, दैट मींस ये होता है। कैश ऑन हैंड मतलब कंपनी के पास कैश पड़ा है। चलो सर कैश भी हो गया, अनपेड बैंक बैलेंस भी आ गए, करंट लोन भी आ गए। अब एक बात बताओ, अदर करंट फाइनेंशियल असेट मींस दैट इज नॉट फाइनेंशियल, ये आ गए असेट। ओके ग्रेट, अदर करंट असेट। आओ सर, आओ 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 सर, आओ सर आओ। नवीन सर, अगर आप सेशन को देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे? नवीन सिंगल सर, आप सेशन में हो ना? आप देखो, अदर असेट दैट मींस इट इज नॉट फाइनेंशियल असेट नहीं है ये। पहला प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा एडवांस टू वेंडर, तीसरा एडवांसेस टू पार्टीज, चौथा एडवांस टू एम्प्लॉय, पांचवा बैलेंस विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये देखिए, अगर कोई टीडीएस आपका रिसीवेबल है ना सर, वो कभी भी फाइनेंशियल असेट नहीं होगा। देख लिया सर आपने, एक लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट है सर ये, एनुअल रिपोर्ट। मैंने बताया था टीडीएस रिसीवेबल कैन नॉट बी अ फाइनेंशियल असेट ऑफ योर कंपनी, एंड ये लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है। हो सकता है डाउट अभी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हो जाएगा डिस्कस। विच कंपनी, अभी तक नाम ही नहीं पढ़ा शुभम साहब आपने, जिंदल सॉ लिमिटेड। जिंदल सॉ लिमिटेड, हम भी जिंदल हैं, कंपनी का नाम भी हम क्या रखते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट 100% एफए है सर, संदीप सर 100% एफए है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आपने पैसा दिया बट सर आपके पास राइट है, यू हैव अ राइट टू रिसीव कैश, यू हैव अ राइट टू रिसीव कैश। ठीक है संदीप सर, आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, 100 साल बाद नहीं, कैश तो आपको वापस हो ही जाएगा उस चीज का। चलिए सर, ये आपकी आ गई सारी प्रैक्टिकल बातें। फिर फटाफट लाइबिलिटी पार्ट को भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इफ सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड, तो फिर आपका नहीं होगा, सिंपल। ये देखो, इस कंपनी ने किया क्या, किसी दूसरे से क्या सिक्योरिटी ली हुई है। इस कंपनी ने किसी दूसरे से सिक्योरिटी क्या है, ली हुई है। तो यहाँ पे आ गया अदर नॉन करंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज, मतलब इसको ये कैश में देनी ही पड़ेंगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके पास। करंट बोरिंग, ट्रेड पेबल। नवीन सर देखिए, आ जाओ। अदर करंट लायबिलिटी मतलब इट इज नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, स्टैट्यूटरी ड्यूज में आ गया। देखो सर, स्टैट्यूटरी ड्यूज में सारे आ गए, पीएफ पेबल, टीडीएस पेबल, जीएसटी पेबल, इनकम टैक्स पेबल, जो पेबल वो पेबल सारे इसमें आ गए। तो इट इज नॉट एट ऑल फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अभी सभी को हो गया क्लियर कि फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या है। प्लीज एटलीस्ट 30-40 रिप्लाई तो आने चाहिए ना, सारे एक बार यस नो कर दो जो है, ताकि आई विल एक्सप्लेन अगेन। अब मैं क्या आगे बढ़ूंगा इसके बाद। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब आ जाओ, ये देखो सर, अब एक इसमें एक और बचा है, एक केस और बचा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, बहुत ही अच्छा केस है। लाइव आपको मैं एक क्या एग्जांपल भी दूंगा इसका। देखो क्या हुआ, ये क्या बोलता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। अब डी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, अब डी पॉइंट की बात कर रहा हूं। ए फाइनेंशियल असेट, ए फाइनेंशियल असेट इज एनी असेट दैट इज कैश, इक्विटी। अब हम आ गए डी पॉइंट पे। ए फाइनेंशियल असेट इज एनी असेट दैट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज। सी,
ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू देम, दैट आर मतलब सर एक मिनट, विद एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन। सी बैंक लोन है, आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, यू हैव अ कंपनी नेम एक्स लिमिटेड, आपने लोन लिया, यू हैव टेकन लोन ऑफ 50 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक, ओके, हैविंग 10% इंटरेस्ट रेट, आप उसको दोगे, बैंक को दोगे पैसा, और जो उसका रेट है रिपेबल करना है 5 ईयर, you need to repayable after 5 years, you need to repayable the loan after 5 years। होता क्या है अभी, क्या होता है, बैंक आपके पास आया, सी लोन आपने लिया है, बैंक से लोन आपने लिया है, बैंक आपके पास आता है और बैंक बोलता बैंक बहुत ही बेकार कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल आपका यस बैंक है, अब यस बैंक हो गया लिक्विडेट, पैसा नहीं है उसके पास, यस बैंक आपके पास आया क्योंकि आपने लोन कहां से लिया था, यस बैंक से, यस बैंक बोलता सर वैसे तो लोन आपको पे करना है 5 साल के बाद, अगर आप ऑन द स्पॉट लोन पे कर दोगे, मतलब विद इन 6 मंथ के बाद आ जाता है ये, जब लोन लिया, लोन लेने के 6 मंथ के बाद ही आ गया, या 31 मार्च की डेट थी और 31 मार्च से पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपको विद इन 2 मंथ, हालांकि टाइम था 5 साल का, अभी उसके अंदर से भी 4 साल सेव थे, अभी तो 1 ही साल का वो गया है, टाइम पीरियड गया, और आप उसका इंटरेस्ट भी पे कर, आपने उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, यस बैंक आपके पास आता है, सर प्लीज आप इस लोन को ना मुझे 31 तारीख से पहले पहले पे कर देना, 31 में, तो आप बोलते हो क्यों पे कर दूं भाई, मैं तो अभी तो 4 साल पड़े हैं, उसके बाद पे करूंगा, तो यस बैंक आपको बोलता है सर आप मुझे 49 लाख रुपीस पे कर देना। पैसे कितने दिए थे उसमें बताओ, पैसे कितने दिए थे, यस बैंक ने कितना पैसा दिया आपको, सारे बोलो, जय माता दी नहीं बोल रहा हूं, बाद में बोलेंगे, कितना पैसा दिया, 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस क्या है आपके लिए, फाइनेंशियल असेट है या लायबिलिटी है, यस बैंक ने पैसा दिया आपको, आपको उसको वापस करना है 5, अब 4 साल रह गए हैं, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई कि नहीं बनी, बनी सर, बिल्कुल बन गई। अब हुआ क्या सर, हुआ ये हुआ कि यस बैंक आपके पास आके बोलता है कि सर आपको 49 लाख रुपीस पे करना है, आफ्टर 2 मंथ 1 लाख की क्या हुई, सेविंग हुई या नहीं हुई, 1 लाख रुपए की आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, प्लीज फटाफट बताओ, 1 लाख का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। वो पॉइंट क्या लिखता है, 4th पॉइंट, डी पॉइंट क्या था, डी पॉइंट यही पॉइंट था, डी पॉइंट का मीनिंग यही पॉइंट था, अगर आप अपने फाइनेंशियल असेट को या फाइनेंशियल लायबिलिटी को एक्सचेंज कर रहे हो, कोई भी चीज को, अगर वो एक्सचेंज कंपनी को फेवरेबल रहा, अगर वो एक्सचेंज कंपनी को फेवरेबल रहा, दैट मींस इट इज योर फाइनेंशियल असेट, इन दिस केस 1 लाख रुपीस इज द कंपनी फाइनेंशियल असेट, 1 लाख रुपीस इज द कंपनी फाइनेंशियल असेट। समझ आया या नहीं आया, आ गया ना। अब यही मैं एक और आई एम टेकिंग अ वेरी गुड एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, आपकी कंपनी ने 50 लाख रुपीस का लोन लिया और आपकी कंपनी ने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट पेमेंट कर दी भाई, नहीं दिया, और बैंक वाले आपके पास आ गए, और बैंक वाले आप, हाउ दिस 1000 इज शोन इन बैलेंस शीट, कुछ नहीं करना सर, 1 लाख रुपए का आपको उसको दिखा देना है FA, और लोन रहेगा 49 लाख रुपीस का, काम खत्म। Why to show this in balance sheet? सर रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि आपको ये गेन हुआ है, पहले ही आपको लग गया पता, इट्स योर गेन, ये आपका लिए क्या फेवरेबल है, हालांकि दिस इज अनरियलाइज्ड, जब तक नहीं होता, बट इट्स अ फेवरेबल चीज,
यस यस अदर एफए। अब एक बात बताओ, बैंक वाले आपके पास आ गए और बैंक वाले बोलते अभी के अभी लोन दो, अभी के अभी पैसा दो, या 6 मंथ के बाद देना, क्योंकि आपने लोन का डिफॉल्ट किया है, आपको 50 लाख के बदले 52 लाख पे करना पड़ेगा, 2 लाख रुपीज एज योर पेनल्टी। ये कंडीशन क्या है कंपनी के लिए? ये कंडीशन क्या है कंपनी के लिए? इट्स अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द कंपनी। ये कंडीशन कंपनी के लिए अनफेवरेबल है, सो दैट मींस इट इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये 2 लाख रुपीज आपके लिए क्या बन जाएंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएंगे, क्योंकि आपको ये देना ही पड़ेगा कि इट्स योर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख रुपीज, दैट्स व्हाई। सो ये था, तो समझ गए अभी सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं, समझ पूरा प्रॉपर लग गया पता हर चीज के बारे में। सो आज का सेशन अभी यही एंड करेंगे, क्योंकि कल का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? आई रेज्ड बिल 50 के ऑन पार्टी, पार्टी ए पेड 45 के, आई डिड नॉट एनटीडीएस सर्टिफिकेट फॉर 5 लाख इन द बुक्स। सर 5 लाख रुपीस को आपको दिखाना पड़ेगा, बट दैट 5,000 रुपीज इज नॉट योर फाइनेंशियल असेट। सर आप दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनेंशियल असेट के कॉलम में वो नहीं शो होगा। इस बात को ध्यान रखना सर, वो फाइनेंशियल असेट है ही नहीं आपका। सामने वाले ने पैसा पे नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, वो आपको उसका नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज नॉट अ फाइनेंशियल असेट, इट इज नॉट अ ट्रेड रिसीवेबल, इट इज नॉट अ ट्रेड रिसीवेबल। सर एक बात सुनो, ट्रेड रिसीवेबल है ही नहीं, क्योंकि वो बैलेंस खत्म हो चुका है। सर आपने क्या एंट्री, आप एक बात बताओ, आपने क्या एंट्री पास की? सेल किया एक चीज, एक सेकंड अभी मत जाना, 50,000 रुपीज, ठीक है, और पार्टी ने किया क्या? 45 आपको बैंक दे दिया, और 5,000 क्या हुआ आपका? जो है आपका है टीडीएस। क्या एंट्री पास करोगे? फॉर एग्जांपल डेटर था मान लो आपका, क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टीडीएस 5,000 टू क्या हो जाएगा? पार्टी जो आपका था डेटर 50,000 रुपीज, खत्म। सर फाइनेंशियल असेट नहीं है, दिस इज नॉट योर फाइनेंशियल असेट। अगर सामने वाले ने जमा फॉर एग्जांपल नहीं किया, लॉस हो जाएगा आपका ये, बट इट इज कैन नॉट बी एफ, हो ही नहीं सकता। अगर नहीं पे किया तो आपका लॉस है, 5,000 रुपए आपके गए, लॉस बुक कर लेना उसको, बट एफ नहीं जा सकता ये चीज का। एक बात और सुन लीजिए, काम की बात है। इंडिया 109 जब आएंगे ना, इंडिया 109 पे जब आएंगे, बैड डेट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है, डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। अब कोई बैड डेट का वर्ड यूज नहीं करेगा। प्रोमिस करो, शपथ ले लो, बैड डेट तो जो आपका प्रोविजन है, बैड डेट नहीं शो करेंगे हम, कभी भी शो नहीं कर सकते। इट इज शोन एज इम्पेयर्ड, इंपेयर्ड वर्ड आ चुका है, इंपेयर्ड वर्ड ने उसको रिप्लेस कर लिया है, जो एज पर इंडिया 109 पढ़ेंगे। टीडीएस कहां शो करेंगे? अब ये सवाल आया है, कहां शो करोगे? हम शो करेंगे टीडीएस रिसीवेबल के अंदर, अदर असेट्स के अंदर, ये ऐसा शो होगा। सो आज का सेशन यहीं तक था, होपफुली समझ आया होगा आपको, एंड यू विल गेट टू नो ऑल द ग्रेट थिंग्स। 2 दिन में हो जाएगा, यस 2 दिन में 100% कंप्लीट हो जाएगा ये सेशन, ये मेरी है गारंटी। कोई भी क्वेश्चन है, होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन के जवाब पहले दे दिए, आपने जब जब पूछा विद इन सेकंड आई आंसर ऑल द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है, अभी 5 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। If you have any questions, please ask. अगले 2 दिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। You will get to know the secrets, heavy secrets. एक अटेंडी हमसे Q&A में पूछ रहे हैं कि क्या हम इंटरव्यूज के लिए इंडिया का सेशन रखेंगे या नहीं। हाँ बिल्कुल, डिमांड रहेगी तो रखेंगे।
Yes, you can see the recording at Voice of CA's YouTube channel. वहां पर हम ये इलेक्ट्रिसिटी recording. नया क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ इक्विटी कल समझाई जाएगी मैडम, कल समझाए जाएंगे आपको इक्विटी, डोंट वरी, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट 100% सर ये एफए है। जब आप बिजली का जब काटोगे अपना जो भी आपका है, जब भी आप अपना बिजली का बिल काट दोगे, जब जो भी आपका मीटर होगा काट दोगे, तब क्या होगा, सामने वाली कंपनी क्या देगी आपको, पैसा देगी। जब पैसा फ्यूचर कभी भी मिले आपको, that means it's your financial asset. Sir, you are very enthusiastic. Thank you. तो कोई भी क्वेश्चन है पूछ लेना, कैसा भी, कोई दिक्कत नहीं है, सब आता है हमें। अनिल जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इंडियस की ब्रीफ हिस्ट्री दे पाएं कल के सेशन में। नॉट पॉसिबल। कोई बात नहीं सर, बल अलग से कर देंगे हम। अनिल सर आप मेरा फोन नंबर ले लो, मेरे से पूछ लेना, 5-10 मिनट में आपको फोन पे ही समझा दूंगा। ये कर सकता हूं आपके लिए मैं सिर्फ। मैम इंग्लिश के अंदर बैचेस नहीं लॉन्च किए जाएंगे मेरी साइड से, बैच लॉन्च होगा हिंदी में ही लॉन्च होगा। इवन अ सिंगल मिनट आई एम नॉट ड्रॉपिंग माई आईज। थैंक यू। ओके सर, एट लीस्ट टू हुम दिस इज एप्लीकेबल, अनिल सर प्लीज आप मेरा फोन नंबर मैं आपको नेहा उनको मेरा फोन नंबर दे देना, अनिल सर को आप मुझे कॉल कर देना सर, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड थैंक यू ऑडियंस कि आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिया। मैं अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, कोई डाउट है कि किसी को पूछ लेना। So this is my phone number and so hopefully अगले 2 दिन और इंटरेस्टिंग रहेंगे। and thank you again Voice of CA team जिन्होंने सेशन का दिया चांस, and thank you अश्विनी सर for sparing your time here। थैंक यू तो हमने करना चाहिए आपको, आप थोड़ी करोगे, हम अरे करेंगे, बिल्कुल, हमने थोड़ी स्पीच बिल्कुल। दी है। और कल हम कोशिश करेंगे कि हम अपना सेशन 4:50 पे शुरू कर पाए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि कल वो थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट जल्दी आ जाएं तो हम सेशन थोड़ा 350 नहीं, 350 हाँ सॉरी 350 सॉरी 350 हाँ। So over to you Neha and over to your team। yes absolutely, thank you so much for sparing your time Kartik and Ashwini sir भी हमारे साथ पूरा टाइम जुड़े हुए थे। absolute hats off to all the participants जो हमारे साथ शुरू से लेके आखिरी तक मतलब कम ही नहीं हुए हैं, ऐसा जितना वो 5 बजे हम लोग को 4 बजे हम लोग को जुड़े अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन। आई होप कल का डेलिब्रेशन भी इतना ही एनलाइटनिंग हो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। इन केस किसी का कोई सेशन कहीं पे मिस हो गया है कोई, तो इसकी रिकॉर्डिंग हमारे वॉइस ऑफ सीए के यूट्यूब के चैनल पे रहेगी। यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रेफर टू इट। एंड अगेन अनाउंसिंग फॉर आवर यूनियन बजट session that we are doing, the first webinar on union budget with Dr. Girish Ahuja and other eminent speakers on 2nd of February at 9:30 AM। हम लोग ने सारे ग्रुप्स एक्सेट्रा में हमारा लिंक एक्सेट्रा शेयर कर दिया है फॉर ज्वाइनिंग एज वेल एज रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ चैट बॉक्स में फिर से शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। इमीडिएटली आफ्टर शेयरिंग दी लिंक हम लोग बस ये इसको क्लोज करेंगे, या कल भी हम लिंक शेयर कर सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, ऑल राइट। कंट्रोल रूम आई रिक्वेस्ट यू सर, अश्विनी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? क्लोज करें सेशन? थैंक यू, इट वाज ए नाइस सेशन कार्तिक। मतलब ऐसे ही वॉइस ऑफ सीए का हमेशा इनिशिएटिव है कि जितने भी हमारे यंग बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको आगे लेके आए, और वो मतलब आगे हम चाहते हैं कि फैकल्टीज डेवलपमेंट, इससे हमारा एफडीपी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलता है कि ताकि फैकल्टीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप हों। और हम क्या होता है कि जितने भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछने में हिचकिचाते नहीं है। तो आज की डेट में उन्होंने कहीं बड़े मतलब अमरजीत चोपड़ा जी को फोन करना तो वो 20 बार सोचते हैं, हमें कहते हैं कि जी बात करा दो, संजय जी से करनी है तो फिर भी बंदा 24/7 अवेलेबल है, बाकी कोई नहीं अवेलेबल है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इतने फैकल्टीज डेवलप हो जाएं हर एरिया में, ताकि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो क्वेरी रिजोल्व इजिली कर पाएं और कंफर्टेबली कर पाएं, क्योंकि वो आपके एजमेट हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग कभी भी कार्तिक जिंदल से कभी भी अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हो।
तो आगे के प्रोग्राम हमको नेहा ने आपको बता भी दिए, और आप काइंडली हमारे जितने भी मैसेज वगैरह से कनेक्टेड रहें ताकि आगे के प्रोग्राम भी आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। Absolutely. sir. Thank you. Control room request you to please close the session as well as recording. Thank you. Bye.